السلام علیکم. آزاد کاسٹ کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حسن ایوب. حسن کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنیں؟ اللہ کا کرم. بالکل ٹھیک. آج ہمیں نئی ایک بات پتہ لگی. ویسے تو خان صاحب روز ایک غیر رسمی گفتگو کرتے ہیں، لیکن آج انہوں نے کہا کہ جو یہ ڈرامہ ایک رچایا جا رہا ہے جنرل فیض کو، جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس بات پہ آپ کیا اپنا کمنٹ کریں گے؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے اس کے اوپر؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ آئی ڈونٹ نو خان صاحب نے یہ خدشے کا اظہار کیوں کر دیا ہے، کیونکہ اگر وعدہ معاف گواہ ان کو بنانا ہوتا تو اس کے لیے تو شاید کوئی اور چیز کی ضرورت پڑتی، لیکن جنرل فیض حمید جو ہے وہ ڈی جی آئی سے رہ چکے ہیں. وہ کوئی کچے کھلاڑی تھوڑی تھے. وہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ عام آدمی جس سے بات کرتے تھے اس کی ہر چیز ریکارڈ کرتے تھے. تو عمران خان کے ساتھ جو ہونے والی گفتگو ہے وہ جو انہوں نے اس کی ریکارڈنگ نہیں کی ہوئی. ٹھیک ہے. تو جنرل فیض حمید اور عمران خان کی جو معاملات ہیں، جو گفتگو ہے، جو بات چیت ہے، وہ اس کے لیے کنفیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنرل فیض حمید کو. جنرل فیض حمید نے آلریڈی اتنا ایویڈنس ان کے پاس سے برآمد ہو چکا ہے جو آئی بلیو کہ اس کے لیے ان کا اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایویڈنس ہی کافی ہوگا عمران خان صاحب کا معاملہ ملٹری کورٹ میں لے جانے کے لیے. اور عمران خان صاحب کیونکہ اب بھنگ چکے ہیں، ان کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کا معاملہ ملٹری کورٹ میں جائے گا ہی جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے. دیکھیے میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بات کی تھی، آپ شاید اس دن کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی تو آپ کی جگہ ملیہ تھی یہاں پر. تو ان کو میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ معاملہ جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری ہے، یہ محض آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹاپ سٹی کا معاملہ ہے. یہ ٹاپ سٹی کا معاملہ نہیں ہے جی. خالی یہ معاملہ اس سے بہت بڑا ہے. یہ معاملہ جو ہے وہ 9 مئی جو ہے وہ بھی اس کی ساری کی ساری جو برین چائلڈ تھا وہ جنرل فیض حمید کا تھا. اور جنرل فیض حمید جس طریقے سے ان کو کہتے رہے، گائیڈ کرتے رہے، اس کے اکارڈنس میں ایگزیکیوشن کرتے رہے بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور ان کی جماعت. اب دیکھ لینا کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے اور جو آرمی کی جتنی بھی علاقے تھے، یعنی ایک ہی دن اور آپس میں 20 منٹ کا گیپ تھا کہ آپ سٹارٹنگ فرام راہ والی گیٹ گجرانوالہ سے، پھر اے ایف آئی سی راولپنڈی، جی ایچ کیو کا گیٹ، پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ باقی دیگر جتنی بھی آرمی کے ایریے ہیں، یعنی وہ جو قلعہ ہے پشاور والا وہاں پر، وہاں سے آپ آ جائیں تو راولپنڈی میں جو ان کا میوزیم ہے آرمی کا وہاں پر، یعنی ہر جگہ آپ نے ٹارگٹ کیا ملٹری کو. تو یہ کوئی کسی نے کسی کی نشاندہی تھی نا کہ تمام لوگ گئے. اور یہ 9 مئی ہوتا، عمران گرفتار ہوتے یا نہ ہوتے، فوج کے اندر بغاوت کرنے کا ایک فیصلہ کر چکے تھے. ایک پوری کی پوری پلاننگ ہو چکی تھی اور وہ اسی پلاننگ کا نتیجہ تھا یہ 9 مئی کا جو واقعات رونما ہوئے. تو اس میں جنرل فیض کا بھی ہاتھ تھا. جنرل فیض اوبویسلی ان کا برین چائلڈ تھا. یہ انہوں نے ہی بتایا کہ کس طریقے سے کرنا ہے، لیکن عمران خان صاحب ایگزیکیوٹر تھے. ہی واز سارٹ آف اے گائیڈر کہ آپ نے گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. باقی آگے سے ایگزیکیوشن تو بانی چیئرمین تحریک انصاف کی اور پاکستان تحریک انصاف کی تھی. ٹھیک ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہوگی؟ دونوں کی ہوگی. دیکھیں قتل کرنے والا بھی اور قتل کے اندر صلاح مشورے میں شامل ہونے والا بھی یا قتل کی ترغیب دینے والا بھی، تمام کا تمام کے اوپر آفینس سیم لگتا ہے، چارجز سیم لگتے ہیں. تو یہ چیز تو وہ بھی اس میں ملوث اتنے ہی ہیں جتنے عمران خان صاحب ہیں، اور عمران خان صاحب جتنے ملوث ہیں اتنے جنرل فیض حمید ملوث ہیں. تو یہ معاملہ جو ہے نا بڑا جو ہے وہ پیچیدہ تھا، جو ابھی اس گرفتاری کے بعد، جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بہت سی چیزیں اس کی سامنے آ چکی ہیں. سو حالات جو ہے خان صاحب کے لیے مشکل ہوتے جا رہے ہیں، آپ کے کہنے کا یہ مقصد ہے. اچھا حسن، یہ سنا گیا ہے کہ چکوال سے کچھ چیزیں بھی برآمد ہوئی ہیں، کچھ اس پہ وضاحت کریں گے؟ اور ایک میرا ایک لائٹر نوٹ پہ میں سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر میں کچھ کروں گی تو میں اپنے گھر پہ چیزیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں ڈسٹروائے کروں گی یا کہیں نہ کہیں غائب کر دوں گی. تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ جی چکوال سے کچھ ایسا ایویڈنس ملا ہے جو کہ بڑا ہی ایک مشکل ہو رہا ہے، اور آگے اس سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لنکڈ اپ ہو رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ وعدہ معاف گواہ بھی بنیں گے جس میں بڑے قریبی لوگوں کا نام بھی لیا جا رہا ہے. صحیح بات کری. دیکھیں وہ ایک روایت ہے 70 سال کی، کبھی بھی کسی ڈی جی آئی سے کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز نہیں ہوا. تو جو جنرلز ہوتے ہیں نا، یہ اپنے آپ کو جو ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو بھی یعنی ایک عزت احترام ملتی ہے، جو جس طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ آرمی جو ہے نا وہ ہر ایک آدمی جو ریٹائرڈ آفیسر ہوتا ہے وہ فیملی ہوتی ہے. آرمی پوری ایک فیملی ہے. یہ صرف سیلری کے لیے کام نہیں کر رہی، اس میں ایک پورا ریلیشن ہے، ایک رشتہ ہے. یہ ایک فیملی ہے. آرمی کے ریٹائرڈ لوگ بھی فیملی کا حصہ تصور ہوتے ہیں اور بڑے تصور ہوتے ہیں. جو ریٹائر ہو جاتے ہیں، یعنی جو سینئر ہوتا ہے، چاہے سرونگ بندہ ہو، وہ ریٹائر بندے کے سامنے آتا ہے تو حالانکہ سلوٹ تو ان کے رینکس کو مارے جاتے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھا کہ یعنی جنرلز آ کر ایک ان سے بیچ میں سینئر ہے اور بریگیڈیئر رینک پر ریٹائر ہوگا تو اس کو بھی عزت احترام میں سلوٹ کرتے ہیں. تو وہ ایک ہم وفاداری ہے. اسی وجہ سے فوج میں اس قسم کی گرفتاریاں وغیرہ نہیں ہوتی. یعنی کسی 70 سال سے کسی ڈی جی آئی سی کی گرفتاری یا کورٹ مارشل کی کارروائی نہیں ہوئی تھی. لیکن جنرل فیض حمید کو تو بلا کے سمجھایا بھی. اچھا
आई कैनॉट कन्फर्म कि उनको एजी ने बुलाया था, एडजुटेंट जनरल ने बुलाया था, या उनको बिग बॉस ने बुलाया था, लेकिन किसी बड़े बंदे ने बुलाया था। ठीक है। उनको बुलाकर उनको समझाया भी गया, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन उनको बुलाया गया था, क्योंकि इंतखाबात के अंदर उन्होंने बहुत सी मनूवरिंग की थी और कोशिश की थी, और उसके बाद उनको बताया गया था, फिर भी वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके। अच्छा, इंतखाबात के अंदर भी उन्होंने कुछ मनूवरिंग की कोशिश की थी, जिसका वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सके। उसके बाद उनको बुलाया गया, उनको समझाया गया कि सर ये चीज़ें अब ना करें, एक चांस दिया गया। लेकिन उनको कई दफ़ा बुलाया गया था, जिनको कई दफ़ा बुलाकर समझाया गया ये चीज़ ना करें, लेकिन वो अनस्टॉपेबल थे। अब जब जनरल फैज़ हमीद रुके नहीं और उनको यानी इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं था, उनकी गिरफ्तारी से 2 दिन 3 दिन पहले तक भी उनको इस बात का एहसास नहीं होने दिया गया कि उनकी गिरफ्तारी होने जा रही है। ठीक है। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुए तो उनके लिए भी ये चीज़ शॉकिंग थी कि मैं गिरफ्तार कैसे हो गया, और जो एविडेंस हाथ लग चुका है तो उसमें जनरल फैज़ हमीद देखे ना, उनके पास रिकवरी आ चुकी है। जब रिकवरी उनके पास आ चुकी है तो फिर उसके बाद उनके पास ऐसे शवाहिद आ गए हैं कि ये एक और प्लानिंग चल रही थी। प्लान क्या था? एक और प्लानिंग चल रही थी कि इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करना। ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाली बात कर रही होती है ना, हमेशा इस तरह की बात, नैरेटिव को इतना जिंदा रखना है कि इसके ऊपर इतना मसला होगा। और फिर उन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी जनरल फैज़ ने कि मैं अदलिया से ये मामला जो हैं आपकी फेवर में करवा दूंगा फैसला, और वहां से फैसला करवाने के बाद जुडिशल कमीशन की बात क्यों कर रहे थे ये बार बार कि जुडिशल कमीशन बने या कोई इस तरीके का काम टेकअप हो, इस मैटर को हम इस तरीके से जो है मैनेज करेंगे ताकि इसका डिसीजन आ जाए और ये हुकूमत एक किस्म की खत्म हो जाए, और फिर मुल्क में लग जाए इमरजेंसी। अच्छा। जब मुल्क में लगे इमरजेंसी, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले भी इमरजेंसी और मार्शल लॉ की बड़ी बातें चल रही थी, तो प्लान ये था कि जब इमरजेंसी लगेगी तो उस इमरजेंसी को हमने कबूल नहीं करना, लोगों को रोडों पर ले आएंगे, एक और 9 मई करेंगे, और इस चक्कर में बगावत करते हुए इस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं इनको भी अपने ओहदे से हटा दिया जाए। ये पूरी मनसूबाबंदी थी। जनरल नासिर मुनीर वाज अगेन टारगेट, इन्होंने टारगेट किया हुआ था। ये गवर्नमेंट को तो इनको ख़त्म करने का तरीक़ाकार अलग था, इनकी प्लानिंग अलग थी, लेकिन इस मर्तबा जो म्यूटनी चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि फौज के अंदर बगावत कराकर, तो बगावत कराकर ये इस तरीके से यानी आप इस चीज़ को मैनेज कर लें और दोबारा आर्मी चीफ को ओहदे से हटवाकर कोई नया आर्मी चीफ लग जाए और फिर एक नया सेटअप हो जाए और उसको एक यानी रेवोल्यूशन का नाम दे दिया जाए पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। लेकिन ये बात आई डोंट नो ये मिसकैलकुलेशन क्यों की जनरल फैज़ हमीद ने। ओवर कॉन्फिडेंट थे वो। देखिए हमेशा वो ओवर कॉन्फिडेंट तो रहे हैं, हमेशा वो क्रीज से बाहर निकल के खेले हैं, लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट उनको इस तरीके की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन कुल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो फैज़ नेटवर्क है इसमें से लोगों को बुलाया भी जा रहा है और उन लोगों को बुलाकर बातचीत करके उनको वापस भेजा जा रहा है। ठीक है। अभी टोटल जो लोग इस टाइम हैं जो 78 के टोटल नंबर है, उसके बाद भी तकरीबन 60 लोग हैं। 18 लोग तो गिरफ्तार हुए फिर वापस हुए जो भी चीज़ उनकी है, लेकिन अभी 60 लोग ऐसे हैं जिनको बुलाया भी जाएगा और इन्वेस्टिगेशन के बाद, इंक्वायरी के बाद उनको वापस भी भेजा जाएगा। लोग आएंगे जाएंगे जिस तरह हर चीज़ में आपको देखिए ना, देखिए कड़ियाँ जुड़ती हैं, वो कड़ी से कड़ी मिलानी होती है, तफ्तीश का तरीकाकार होता है। वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आई बिलीव कि शायद पूरे मीडिया में, पाकिस्तान के मीडिया में किसी के पास नहीं है। ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव एंड राइट फ्रॉम कहते हैं कि स्पॉट से मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ और अल्लाह का शुक्र है ये सारी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है इंशाल्लाह, और इसमें एक चीज़ की भी झोल आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। मुझे एक सवाल आपसे पूछना था, आपने कहा कि इन्हें समझाया गया, एक बार समझाया गया, दोबारा समझाया गया, ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों थे और किसकी बेस पर थे? इनको किसकी इतनी सपोर्ट थी कि इनको लग रहा था कि जी आई एम अनस्टॉपेबल और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम द मास्टरमाइंड? एंड वाज ही ट्राइंग टू यूज इमरान खान और इमरान खान बीइंग यूज्ड बाय हिम? ये क्या हुआ और ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से? दोनों के इंटरेस्ट कपल्ड थे। इंटरेस्ट क्या था? इंटरेस्ट ये थे जी कि इमरान खान का तो इंटरेस्ट था कि दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, इक़्तिदार में आऊंगा, मेरे मुकदमात खत्म हो जाएंगे, ये अपोजिशन फिक्स हो जाएगी। इमरान खान का इंटरेस्ट तो ये आ गया। जनरल फैज़ हमीद चाह रहे थे कि वो रिटायरमेंट के बाद जब आर्मी चीफ हट जाएंगे और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो वो इनको DGI से अपॉइंट करेंगे दोबारा। ये मैं पहले भी पिछले व्लॉग में बोल चुका हूँ, वो दोबारा DGI से बनना चाह रहे थे। इनका तो ऑब्जेक्टिव ये था। अब इसमें देखिए जनरल फैज़ हमीद का जो पूरा कैरियर है, उस दिन मैं देख रहा था मोहसिन बेग साहब कह रहे थे कि ये ब्रिगेडियर वाला जो वार कोर्स किया उन्होंने, उसमें उन्होंने अपना हेयर लाइन फ्रैक्चर कराया था। नो, इट्स नॉट करेक्ट। अच्छा। ब्रिगेडियर फारूक मरहूम जो है वो मेरे
मरूम वालिद के दोस्त थे, इनके जो ससुर हैं, और इनको हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ था। ये कोयटा का स्टाफ कॉलेज था, उसके एग्ज़ाम के लिए इनको हेयर लाइन फ्रैक्चर कराया था बाजू में, और साथ एडिंग ऑफिसर बैठा था। तो वो मोहसिन बेग साहब की जो बात है वो बात ठीक है, लेकिन वो खाली जगह उन्होंने गलत बता दी। वो NDU में नहीं था, वो स्टाफ कॉलेज कोयटा था। ठीक है, जो मेजर के बाद आप कर्नल के लिए प्रमोशन के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि शायद मेरे ख्याल से चंद ही लोगों को दुनिया में मालूम है। आई एम वन ऑफ दोज, बिकॉज ब्रिगेडियर साहब जो फारूक साहब थे, वो और मेरे वालिद साहब का बड़ा इज्जत एहतराम का रिश्ता था। मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं तब से ब्रिगेडियर फारूक साहब को जानता हूँ, यानी आई वाज इन मे बी ग्रेड 2 या 3। इनके ससुर, इनकी शादी बाद में हुई जलफैज की, ठीक है। तो उस फैमिली को मैं पुराना जानता हूँ, अवान फैमिली है वो भी चकवाल के। खान साहब के बारे में कहा जाता है, अक्सर लोगों से मैंने सुना है, जो पार्टी के अपने लोग हैं या जो नए मिले हैं, सब ये कहते हैं कि खान साहब कानों के कच्चे हैं। अभी ये भी कहा जाता है कि कोई मिसफॉर्चूनर है, उन्होंने जाके किसी की शिकायत लगा दी और फिर इस्तीफों के ऊपर बात आ गई और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हुए। अगर खान साहब कानों के कच्चे हैं, तो जिन लोगों ने जनरल फैज़ को समझाया, उन्होंने खान साहब को नहीं समझाया, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है वो शायद उनकी बातों में आ जाते और समझ जाते। नहीं, जनरल फैज़ हमीद का तो मामला, वो तो फौज फैमिली थी ना, इमरान खान को फैमिली थोड़ी है। इमरान खान साहब को तो देखें, बुशरा बेगम को जनरल फैज़ ने काबू किया हुआ था, और बुशरा बेगम अभी देखें ना, अभी जो राब्ता इनका था, जो बात अभी सामने आई है, वो सारी की सारी बातें, ये जो जितना भी चैनल एक्टिवेट हुआ था, वो तो वाया बुशरा बेगम सारी कम्युनिकेशन चल रही थी। और फैज साहब को बुशरा बेगम से कांटेक्ट करने की जरूरत है, खान साहब को छोड़ के। जी, फैज साहब का बनीगाला के ज़माने में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उस ज़माने में भी बुशरा बेगम के साथ कांटेक्ट था। जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो बड़े पहुंची हुई शख्सियत हैं, वो सारी ऐसा DGSI जो इन्फॉर्मेशन बुशरा बेगम को देते थे, बुशरा बेगम वो बातें इमरान खान को बोलती थी और वो बातें चंद दिनों में हो जाती थी। बीइंग DGSI उनके पास पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती थी और वो फौरी तौर पर बुशरा बेगम के साथ शेयर करते थे। तो खान साहब उसको रूहानी समझ बैठे ना जी, वो समझते कोई सिलसिला है, कोई ऐसा तरीकाकार है जहाँ से इनके पास इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो खान साहब क्या हमारे एक और भी क्या बोलूं, मतलब कि खान साहब डायरेक्ट इनकी DGISA की बात नहीं मानते थे, बाद में बुशरा बीबी के, देखिए बुशरा बेगम जो बात करती थी, उस बात के बाद दूसरी बात खत्म हो जाती थी। उस्मान बुज़दार को उन्होंने CM लगाने का कहा, तो उस्मान बुज़दार CM बने ना, और फिर उनको हटाने का जनरल बाजवा ने भी कहा, तो वो फिर नहीं हटी ना। तो वो अपना अकीदा मजबूत कर लिया ना उन्होंने अपने ऊपर जो उनका अकीदा था, इमरान खान के अकीदे को, भरोसे को मजबूत कर लिया। तो इमरान खान साहब अब तो सारी की सारी जो उनको पास ये सारी जो प्लानिंग थी अभी इस वक्त की, सारी बातें उनको पता थी। ये पुरानी बातें कर रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर थे, अब तो उनका रिलेशन उससे बहुत ज्यादा बढ़ चुका था आगे। ठीक है, अब तो जनरल फैज हमीद और इमरान खान डायरेक्ट हो गए, बिल्कुल डायरेक्ट थी। अभी भी कम्युनिकेशन बुशरा बेगम की थ्रू थी, क्योंकि डायरेक्ट मुलाकात हो नहीं पा रही थी। डायरेक्ट मुलाकात इसलिए नहीं हो पा रही थी कि इमरान खान साहब के ऊपर तो चेक एंड बैलेंस थे, और कम्युनिकेशन वो जो जेल खाना जाते जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो मोहम्मद अकरम डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, या उसके साथ 3 लोग और हैं, उनके थ्रू करते थे, कम्युनिकेट करते थे बुशरा बेगम को, जिनके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस कम थे। तो अब ये पूरा का पूरा खेल सामने आ चुका है। ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी, ये जो पूरा का पूरा खेल था, ये सारी की सारी चीजें कंफर्म हो चुकी हैं। लेकिन खान साहब ने कहा कि मुझे अगर कोई बात कन्वे करनी होती या कुछ भी होता तो मेरे पास पार्टी लीडर्स आते थे, मैं उनसे कह सकता था। ये मोहम्मद अकरम के ऊपर उन्होंने कहा। देखें ये बातें, अब उसके बारे में क्या बोलेंगे, मोहम्मद अकरम खुद बोल जाएगा, मुझे बोलने की क्या जरूरत है, ये आपको बोलने की क्या जरूरत है, खान साहब को बोलने की क्या जरूरत है। और मेरी बात सुने, जो जनरल फैज हमीद के साथ उनकी जो कम्युनिकेशन है या जो चीजें हैं, उसका एविडेंस मौजूद है, और इमरान खान साहब की और उनकी गुफ्तगू की शायद रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। ये जनरल फैज ने खुद ही रिकॉर्डिंग्स की थी। जी, की थी। सो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑडियो लीक्स और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ, जनरल फैज से स्टार्ट किया। ठीक है, क्योंकि आज ऑडियो लीक्स के ऊपर कहा गया कि 29 मई और 25 जून का जो था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टांस लेते हुए कहा कि इसको फिलहाल, वो तो जाहिर बात है वन साइडेड चल रही थी। जब किसी जगह पर देखा उन्होंने मामलात के जनाब इस एंगल, इस तरफ से तो उस चीज को देखा नहीं जा रहा, यानी नजम साकिब को उन्होंने नोटिस ही नहीं किया हुआ था, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस का बेटा है भाई, ऑडियो उसकी है, उसने हो सकता है खुद रिकॉर्ड की हो। अब जनरल फैज और इमरान खान की रिकॉर्डिंग है, इमरान खान की किसने रिकॉर्ड की आज तक ये पता नहीं, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज को नोटिस नहीं किया हुआ था उसमें। ठीक है, तो ये हो सकता है जनरल फैज ने सब कुछ किया हो, शुरुआत इन्होंने की हो, शुरुआत तो डेफिनेटली उन्होंने की है, उन्होंने अपना पैरेलल नेटवर्क खड़ा किया हुआ था ना। ठीक है, अभी जनरल फैज हमीद जो है ना, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जो हमारी है, या हमारी जो दिस इज अ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इवन आफ्टर रिटायरमेंट, अपने कॉन्टैक्ट्स को गलत तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी की बात ये है, और मैं बड़ी बात कंफर्म कर रहा हूँ कि ये लाइट नोट पर बात कर रहा हूँ, लेकिन बात सच है। होता ये है ना कि हमारे यहाँ कई दफ़ा ना पुलिस वाले कहते हैं जनाब के पूछा यार ये बंदा सुना है, ये बंदा कौन बैठा हुआ है, वो बंदा बताएगा, आप किसी थाने में किसी काम से जाते हैं, कहते हैं जी ये पता नहीं कौन है जी,
पंजाबी में बात करते हैं, कहते हैं कोई चरसी जा बैठा है आज 3 दिन बुलाया है तो कोई बंदा इतने पीछे नहीं आया, असि हम चाह रहे हैं कि इनको बाहर ले जाए ना, कोई शख्सी जमानत पर बंदा ले जाए तो इसको जेल भेज के क्या करेंगे, ये बिल्कुल ही फारग है, मतलब ऐसी चीज़ है। तो वो होता ये है कि जब इस तरह के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब गिरफ्तार हुए थे ना तो उनके लिए पूरी दुनिया ने राब्ते किए थे पाकिस्तान से। नवाज शरीफ साहब जब गिरफ्तार हुए ना तो उनके लिए यानी अमेरिकन जो प्रेसिडेंट था क्लिंटन भी, फिर उस वक्त के जो क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला थे वो खुद अपना जो है जहाज़ों ने भिजवा दिया, और शाह फहद साहब उस टाइम थे जो बादशाह थे सऊदी अरब के, और उन्होंने भी इस बात पर किया, फिर उनको पूरा उनको ले गए यहाँ से सऊदी अरब, और वो स्टेट गेस्ट रहे जितना अरसा वो एग्जाइल में रहे सऊदी अरब में। इमरान खान साहब के लिए कोई एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद एक आध मुल्क को कर ले, यकीन करें किसी मुल्क ने सोमालिया तक ने रब्ता नहीं किया पाकिस्तान से। नहीं तो वो तो एक ऊपर आई ना कि वो जो पिछले दिनों जो था कि जी ये जो इलेक्शंस हुए हैं ये भी फेयर नहीं हुए, और खान साहब की जो गिरफ्तारी है भी कोई सही किसने नहीं किया? ये वो यूएन की रेजोल्यूशन वाली बात कर रही है। नहीं वो रेजोल्यूशन तो वो मैंने जब आपने लॉबीज फंड की ना, किसी मुल्क ने रब्ता नहीं किया कि हमारे हवाले करें, हम गारंटी देते हैं, इसकी गारंटी शख्सी जमानत देनी पड़ती है ना, इस तरह मुल्क भी गारंटीज देते हैं। इमरान खान साहब की गारंटी जो है वो सोमालिया तक ने नहीं दी, हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है उस मुल्क ने नहीं दी, यानी किसी छोटे से छोटे मुल्क ने, सऊदी अरब तो बहुत दूर की बात है, किसी छोटे मामूली मुल्क ने भी रब्ता नहीं किया इनके लिए। ठीक है, तो ये इनका दुनिया में हिसाब किताब है जी। चाइना कर देता, पाकिस्तान चाइना से मजबूर है, पाकिस्तान यूएई से नहीं, वो मर्द का बच्चा नहीं देखते होते, वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मर्द का बच्चा कोई नहीं था, फांसी पे चढ़ गया वो, ठीक है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए भी वो गारंटी दे रहे थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं माना, उन्होंने कहा मैं फांसी पर चढ़ना पसंद करूंगा, लेकिन इनके लिए तो किसी ने बात ही नहीं की ना। लीडर्स तो यही होते हैं जो फांसी पे चढ़ जाते हैं, लेकिन इनके लिए तो बात ही किसी ने नहीं की ना, किसी ने पूछा ही नहीं। आप कह रहे हैं ना, मतलब वो जिस तरह थाने में एक बंदा आ जाता है ना, वो 3 दिन के कहते हैं माड़ा चरसी से बैठा है, इस तरह 3 दिन 4 दिन गुजर गए, वहां पर कोई ना पूछे तो पुलिस वाले भी कहते हैं यार अब इसका क्या करें। अब मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब के तो हालात ये हैं कि इनके बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा। पूछ तो रहे हैं, फेस तो कर रहे हैं, लंदन भी नहीं भागे हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि तोशा खाना में जो था कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया, ये पहला। उसके बाद आ गया जी तोशा खाना में अदालत ने बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। इस पे क्या बात करेंगे? बस वो जो 190 मिलियन वाला केस है वो कंक्लूड होने वाला है, तो ठीक है, ट्रायल तो चलेगा ना आगे, सही है, ट्रायल के चलने में तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तोशा खाना की एक और चीज़ है कि कैबिनेट ने 1993 से लेके 2002 तक का रिकॉर्ड खुफिया रखने की मंजूरी दी थी। क्या रीज़न था, खुफिया क्यों रखना था? तोशा खाना है, ले आए सामने 2002 तक, 1993 से लेके 2002 तक। 2002 तक अगर 2007 तक करते तब तो मुझे समझ आती थी, या अगला टाइम को बीच में लेकर आते। ये पिछले टाइम में जो है वो क्या रिकॉर्ड नहीं था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्या हुआ था? वेल आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन ऐसी करने की जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से। मैं कैबिनेट के डिसीजन से इत्तेफाक नहीं करता, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो गिफ्ट मिले हैं वो पता लगनी चाहिए, और किस भाव पर आपने लिए हैं ये भी पता लगना चाहिए, और मेरे ख्याल के मुताबिक इस बात से कोई राय फरार होनी नहीं चाहिए। लेकिन इसमें तो मेरे ख्याल से जो लास्ट अदवार हैं उनका तो शायद ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब तो 2013 में बने थे। जो टाइम आप कर रही हैं 99 से 2002 तक बात कर रही हैं, 1993 से 2002, 93 वाला तो बीच में तो आ गया टाइम, बीच में नवाज शरीफ साहब वाला, फिर परवेज मुशर्रफ वाला टाइम ज्यादा है। ठीक है, परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में क्यों ऐसा क्या? आई हैव नो आइडिया, वैसे करना नहीं चाहिए, ऐसी होनी नहीं चाहिए। अच्छा, बात क्लैरिफाई होनी चाहिए। एक आपने इसी चैनल पे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी और बड़ी अच्छी थी कि जी फायरवॉल आ गई और ये हो गया। फायरवॉल के ऊपर लोग जो हैं वो डिनाइल में जा रहे हैं। वो जो भांजी हैं, भतीजी हैं ख्वाजा आसिफ साहब की, आई डोंट नो उनका होता क्या है, शिजा ख्वाजा, वो कहती थी पे मफरूजा है। फिर जब कल उनसे सवाल किया गया कि इसके ऊपर बात करें तो वो इसको ट्विस्ट करके जी नहीं ये तो VPN की वजह से सब हो रहा है। तो इस पे क्या बात करेंगे आपके, क्या ये वाकई फायरवॉल है? और अगर है तो उसको एडमिट करें, माने कि हाँ जी फायरवॉल है। मैं तो फायरवॉल नहीं, लेकिन पहले तो इंटरनेट नहीं चल रहा था, आज तो इंटरनेट मुझे इशू नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन कल तक आज तो इशू नहीं कर रहा मेरे ख्याल से। अभी तो मैं ट्विटर भी देख रहा हूँ, बड़ा VPN के बगैर भी चल पड़ा 1-2 दफा तो मेरे ख्याल से बेहतरी आ रही है। ये तो अब शिजा ख्वाजा साहिबा जो हैं, हम बेहतर है कि हम उनसे मौक़िफ़ ले लेते हैं, उन्होंने ये बात क्यों की है, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है ये मुझे भी समझ नहीं आया। इसकी वजाहत तो लेनी चाहिए शिजा ख्वाजा से कि जनाब के VPN इस्तेमाल करने से इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई है। ये बात मेरी समझ से बालातर है, यानी VPN जो है वो इस्तेमाल करने से ये किस तरह इंटरनेट स्लो होता है, ये साइंस या जो क्या इसमें टेक्निकल बात क्या है, इतनी नॉलेज नहीं, टेक्निकल बात क्या है मैं पूछते नहीं, बड़ी कॉम्पिटेंट खातून है। नहीं वो सारी बात है, वो नीस है उनकी, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ की नीस होना अलग बात है, लेकिन
शी इज़ अ कॉम्पिटेंट लेडी, मैंने उनसे competent person है अगर ऐसा मैंने उनसे बात की हुई है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्यों दिया है? देखिए पता क्या होता है, खवातीन जो होती है ना, वो मैं बात करूंगा फिर आप कहेंगे जी आप अजीब बात करते हो खवातीन, वैसे मैं बात ही नहीं करता, छोड़ दे मैं बात ही नहीं करूंगा। चलिए ठीक हो, मेरे लिए तो मैं खवातीन के सामने सरेंडर कर रहा हूँ, मैं बात नहीं करता। देखिए मेरे लिए तो मैं डरता हूँ, सबसे ज्यादा डरता हूँ अपनी बेगम से, सबसे ज्यादा डरता तो अपनी बेगम से हूँ। तो मुझे लोग कहते हैं यार तुम अपनी बेगम से डरते हो, मैं कहता हूँ हाँ जी डरता हूँ। ठीक है। सो अगर आपने बेगम की बात की कि आप बेगम से डरते हैं, तो इसका मतलब फैज साहब का बुशरा बीबी को कांटेक्ट करना मतलब डरा धमका के खान साहब को मजबूर किया गया कि अब आपने कुछ ऐसा करना है, यानी कि वो खुद से कुछ भी नहीं था, खान साहब नहीं चाह रहे थे। बेगम से डरते हैं, हर कोई डरता है, आप डरते हैं, वो भी डरते होंगे। मैं अपनी बात कर सकता हूँ जी, हो सकता है। मैंने तो ऐसे मेरे वालिद साहब भी बहुत डरते हैं, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपनी वाइफ्स के साथ उनका रवैया बड़ा शर्मनाक है। हमारी सोसाइटी के अंदर हमारे यहाँ जिस तरीके से विक्टिमाइज किया जाता है ख़वातीन को, मेरे ख्याल के मुताबिक वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है। इवन बरतानिया के अंदर मैं इस इशू को भी हाईलाइट करना चाहूँगा, किस दिन करूँगा, कि जनाब फोर्स मैरिजेस करते हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी ख़वातीन होती हैं, वो पाकिस्तान लेकर आते हैं उनको, और यहाँ पर उनकी शादियाँ ऐसे ऐसे लोगों से कर जाती हैं कि जिनका मैच नहीं बनता। तो वो चीज़ें हम इंशाल्लाह किसी दिन अपने इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिल वक्त जो है वो खान साहब डरते हैं नहीं डरते, उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, अपनी बात मैं कर सकता हूँ, जी मैं डरता हूँ। ठीक हो गया जी हसन, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।